welcome you back to the channel. Today we'll discuss a very special topic that how you should study Robbins. I have entirely highlighted for you the Robbins, that how you have to read Robbins and what all we need to do in such a manner, right? And I think this would be very essentially helpful for second year MBBS, because पहले तो हम Robbins book to book मतलब cover to cover पढ़ते थे, पूरी Robbins we used to study, right? But now since you guys are having a little bit of less time, and आजकल it's not that easy to study entire Robbins as well. So in the particular scenario this will hold very true. So you can follow me on MathShots if you have any other query, or comment below. So now let's begin with starting that how should you study Robbins and what all to study in Robbins. Okay, so I'll tell you some general golden rules, then I'll tell you the chapters to focus more on, and then I will tell you what part in each chapter you need to study and how to study and how many days you have to give. So I am assuming here that suppose right now May is going on and maybe you will have your second year exams 2020 batch will have, I guess, in January, February, right? So let's assume a time period of that or even less. So how you will study. So now these are the chapters. So I have highlighted 3 color coding. So now pink or red, whatever you may call, this is the most vital chapter. You have to study as much as possible from Robbins, right? So those are mainly 5 this 4 chapters are of general or pathology. So isme you need to study inflammation very nicely, neoplasia, WBC, RBC, right? In systemic I'll tell you how to study, but yes, GIT holds a very good importance, liver, kidney and endocrine system, right? So now let's focus on how we will do that. And also the yellow ones are which one are not very important to study, but they are more asked in your prof exam. So if you want to write it very well, then you can study this particular cell injury chapter. Green ones are those chapters which won't help you right now mostly in your prof exams or in general, but if you study them very well, आपका जो medicine वाला part है और in general जो पूरा फाइनल ईयर तक आपको काम आएगा, as well as in practice काम आएगा. So that is hemodynamic, blood vessel, heart and lung, right? So no chapter should be left of systemic as such. You should have an idea. Now let's look कि हर chapter को पढ़ना कैसे, because obviously if I say this chapter is important तो भी आप इसका पूरा नहीं पढ़ पाओगे, right? So now let me tell you how to study a particular chapter. So we will start with, say, first chapter, which I have told you is although I have not marked it here, but I'll tell you some points about this chapter as well, right? So now what are the various approaches? The approach will be, first approach which I will tell you to follow is concept building storyline. So now what this approach will mean is कि इसमें आप कुछ भी याद नहीं करोगे उस चैप्टर का, आप बिल्कुल एक नॉवल जैसे पढ़ते हो, एक लिटरेचर बुक जैसे पढ़ते हो, वैसे आप बस पढ़ जाओगे, ओके? एंड यू विल अलॉट से 4 days in this particular chapter. Now this day means पूरा दिन नहीं, कोई सेशन 2-3 घंटे का, 4 घंटे का. एंड ऑब्वियसली आजकल you guys have notes of various platforms, you watch video lectures. So I'm assuming कि उसके कारण आप वो देखने के बाद ही पढ़ते होगे, तो उसके कारण थोड़ा टाइम कम हो जाता है क्योंकि आपको ऑलरेडी एक आइडिया मिल चुका होता है. So these are the topics which you need to mostly focus upon. So इसमें जो important theory है जिससे questions आ सकते हैं या MCQ बन सकते हैं वो आपके नोट्स में कवर हो चुके होंगे. ये बस आप अपनी एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इन टॉपिक्स पे मेनली फोकस करो और इनको एक बार बस गो थ्रू कर लो, 1 से 2 बार बस गो थ्रू करके पढ़ लो, फिर उसको आप जो है मतलब बाद में रिवाइज कर सकते हैं. तो आखिरी में आई विल आल्सो टेल यू टू हाउ टू रिवाइज Robbins as such, because if you can't revise there's no point of studying, right? So now this was this particular chapter. इसमें कुछ इतना खास नहीं है, so just study these topics. I'll tell you more upon next chapter, right? So before that guys, I want to tell you about a very important feature which is about to launch in PrepLetter app very soon. So now this feature is basically clinical case discussion feature, which is very useful for second year MBBS and onwards. Now whenever you go to the wards or maybe in your final exam vivas, basically you take history of a case and then you present it to the faculty. The faculty will in turn ask questions from you. You will answer those questions if you can. Otherwise they will just suggest you that what could be the answer and how you should learn it. On the similar note, PrepLetter is going to launch a clinical case discussion feature in which in a single particular app you will get every possible clinical case which are important right from your MBBS second year के जो आप cases लेते हो to final year. So there will be all in all 236 videos which will be kind of an exact replica, which will help you कि आपको पता चलेगा एक तो कौन से cases important होते हैं जो generally वार्ड्स में भी पाए जाते हैं या जो आपके एग्जाम्स में आते हैं,
plus how you should go about it, because history taking is an art, right? You need to know the negative points, you need to know how to diagnose this particular thing, and you also need to know कि कैसे answer भी करना है. So this will cover your history वाला part as well as wards वाला part as well as viva वाला part. So let's quickly have a sample video on the same. Yeah. So in aortic valvular stenosis, we prefer valve replacement over balloon mitral valvulotomy, though it is being practiced increasingly now. Generally, theoretically, we prefer valve replacement. The reason for that is your aortic valve is in the high pressure zone. Right. So in the similar note, a student will present the case and the questions would be asked, and then the answer will be discussed for that particular case. So now, since this feature is about to launch, I would suggest you to check out this feature and other features from the link in description on the app. And also, if you are a new user, then you will get entire content on the app free for 24 hours. So make sure to check this great feature out. So now let's continue with the chapter wise strategy. So this was for this chapter of cell. Now this is again the second chapter, cell injury. So cell injury is something again which is very important for your prof exams, but in general, if you know about necrosis, apoptosis, this will never harm you, right? So these three topics should be done very well, right? Cell injury and mechanism of cell injury. Now this particular topics, hypoxia and types of adaptations, can be done as a एक reading लगा सकते हो, right? So now what approach you have to follow is C plus FR. So C plus FR is कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्लस फैक्ट रिटेनमेंट, राइट? तो इसमें फैक्ट्स आपको काफ़ी याद रखने हैं. जैसे अब मैं बोल दूँ आपको एंटी एपोप्टोटिक जीन कौन से होते हैं, राइट? तो आप जब रॉबिन्स पढ़ोगे तो दो टाइप की चीज़ें आती है. एक आता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो वो स्टोरी लाइन हो गई कि उसको आप बस जैसे एक नॉवेल जैसे पढ़ जाओ, ठीक है, कि दिस 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 हैपेंस, आपका एक दिमाग खुलेगा, राइट? एंड वेन एवर देयर आर फैक्ट्स, डू नॉट रिमेंबर इट राइट देयर, बस आप वहाँ पे नोट करके रख लो कि यहाँ पे फैक्ट था, राइट? अब आपको एपोप्टोटिक जीन, एंटी एपोप्टोटिक हो सकता है अभी एकदम से याद ना हो, या आपको बुक के याद ना हो, वो याद होंगे आपको नोट से, बट आपको जो कॉन्सेप्ट समझना था उसके लिए रॉबिन्स बहुत ज़रूरी है, राइट? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू फॉलो. यू कैन अलॉट 7 days in this particular chapter, guys. So now next chapter is inflammation and repair. So I think I don't need to tell you anything about this. This whole chapter is very important. You need to study it by heart as much as you can. Mostly concept building. So again, the जो आपके नोट्स आपके पास ऑलरेडी होंगे या आपके कॉलेज के नोट्स जो भी हैं, तो आपका जो एग्जाम में लिखने का डर है वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा. और देखो एग्जाम में तो 1 महीना पहले तुम हर्षमोहन पलटाओगे ना तो भी तुमको समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है. मोस्टली तुमको बस हेडिंग्स देखनी होती है, कॉन्सेप्ट तो तुम्हारे खुद के ही रहते हैं, राइट? सो डोंट वरी अबाउट कि मैं इतना सारा पढ़ रहा हूँ तो मैं लिख के क्या आऊँगा, मैं कैसे लिख के आऊँगा. अभी से उसका मत सोचो, मे बी 3 months पहले तक सोच लेना. अभी यू शुड जस्ट enjoy studying Robbins in general, right? So now this is approach mostly conceptual because again there are too many facts and there are too many facts. जब too many facts होते हैं वो भी नहीं पढ़ना है, जब very little fact होते हैं तो concept जैसे पढ़ना है. बस जो बीच के थोड़े बहुत फैक्ट्स आते हैं जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है वो आप याद करके रख लो, नहीं तो नोट्स में से याद हो जाएगा. आप बस कंसेप्ट के लिए समझो रॉबिन्स, राइट? So now this was about this particular chapter. So let's proceed to hemodynamic disorder. So this chapter is very important. Like I wish कि आप इसको पूरा पढ़ें. मे बी आपके प्रॉफ में शायद उतना ज़्यादा नहीं आता हो, बट ये मेडिसिन, सर्जरी, हर जगह शॉक हर साल ही आना है, राइट? So this is something which you need to study very well. These topics, try to study them as much as you can in these 5 allotted days or maybe more. And again approach will be concept. मतलब अभी आपको रटना नहीं है उसको कि कैसे इडीमा हो रहा है, बस समझ के रखो, समझ के चलते चलो, राइट? So this was for that. And now neoplasia. Neoplasia is again similar to inflammation. पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट लगा के ही पढ़ना है. नोट्स में आपको ऑलमोस्ट सब मिल ही जाता होगा. Days allotted 15, right? So don't worry, right now I'll tell you how to revise it. This is just the first reading going on, okay? So now the blood vessel chapter, this is again something which will help you in long term. अच्छा देखो, अब मैंने ना इसमें बीच के चैप्टर सारे गायब कर दिए. So what is the conclusion out of it? So basically I have already told you about these particular chapter. Now these are the chapters जिनमें आपको बहुत easily आपकी रॉबिन्स ऐसे sort of क्रॉस कर सकते हो आप. Because क्या होता है, this is something like इसमें क्लिनफेल्टर, डाउन, टर्नर ऐसे करके कुछ सिंड्रोम्स पढ़ना है, तो आप वो कहीं से ही पढ़ सकते हो. उसमें बहुत कंसेप्चुअल पार्ट नहीं होता है, राइट? रॉबिन्स इज मोस्टली कंसेप्चुअल. Although if you can read, it's well and fine. There's no मतलब समथिंग नेगेटिव ऑन इट, बट रॉबिन्स के लिए, कंसेप्ट के लिए ये चैप्टर आप
इग्नोर कर सकते हो। ये पूरा का पूरा चैप्टर आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हो, ये भी पूरा माइक्रोबायोलॉजी में कवर हो जाता है। दिस चैप्टर इज समथिंग नॉट वेरी हाई यील्ड एंड दिस चैप्टर इज गायनी एंड पीडिया। गायनी पीडिया ऑल्दो कंसेप्ट बिल्डिंग फाइनल ईयर के लिए अच्छी बात होगी, बट इतना टफ नहीं होता है। मेडिसिन सर्जरी ज़्यादा टफ है एज ऑफ नाउ। इफ़ यू आर हैविंग लेस टाइम, फोकस मोर ऑन दीज पर्टिकुलर चैप्टर्स। ये आप बाद में भी कर सकते हो। इसमें आप सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे जो डिजीज है वो अच्छे से पढ़ सकते हो। सो ये कहने को तो आप कह सकते हो कि चलो 4 चैप्टर्स तो रॉबिन से हो चुके हैं, राइट। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन अदर चैप्टर्स एज आई वाज डिस्कसिंग। सो ऑलवेज रिमेंबर कि हम शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं और 10वें चैप्टर तक आके रुक जाते हैं, बट 10 चैप्टर में से 4-5 चैप्टर तो आपके काम के अभी नहीं है, राइट। सो ऑलवेज फोकस मोर ऑन दीज रेड चैप्टर्स फर्स्ट, देन येलो, देन ग्रीन। पहले रेड खत्म कर लो, बाकी सब नहीं भी हो पाए तो चल जाएगा। ओके, सो नाउ ब्लड वेसल्स में अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म। हाइपरटेंशन आपका फर्स्ट ईयर का भी रिवाइज होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस, एन्यूरिज्म, वास्कुलाइटिस, वेरिकोज वेन, रेनॉल्ड फेनोमेनन। सो अगेन 5 डेज में आप जितना भी एक कॉन्सेप्ट, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। आप अभी रॉबिन्स को याद मत करो, फर्स्ट रीडिंग में याद मत करो, सेकंड में कैसे करना है मैं बता दूंगा। देन हार्ट में अगेन समथिंग लॉन्ग टर्म, आपको अभी शायद इतना इश्केमिक हार्ट डिसीज के अलावा प्रॉफ में इतना नहीं आता हो। एरिथमिया, हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर, ये सब कोई नहीं पूछता होगा शायद, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड रूमेटिक फीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सेकेंड ईयर एज वेल, so you need to study it quite nicely. So these are the topics. You can maybe take a screenshot or mark it in your book as well. So days you can allot it as 7. Then basically we will proceed to WBC again, similar to inflammation, right? So now how you have to study these disorder. So in these disorder आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, right? Now what I will tell you is basically कि आप ऐसे ही एब्सेंट माइंडेड या जैसे भी आप पढ़ना चाहें, इट्स नॉट एन इशू। व्हाट यू डू इज, आप सिंपल, आपने सपोज ये एंटिटी खोली DLBCL, ठीक है, आपको इसको कंपेयर करना है बुर्किट लिम्फोमा से। कोई भी टॉपिक आप बिना कंपेयर करे पढ़ोगे ही नहीं। आप एक बार स्टार्ट करोगे, सपोज आपने यहाँ से स्टार्ट किया लिम्फोइड नियोप्लाज्म से, जो भी कंडीशन आती है, अगर आपकी ALL आ रही है, AML आ रही है, CML आ रही है, CLL आ रही है, आप एक पेज लीजिए, उस पर चारों कॉलम बनाइए और इन चारों के जो भी पॉइंट आप पढ़ रहे हो उसको आप पढ़ो मत, आपको मतलब थोड़ा बहुत समझो आप उसको, बट पहले आप पेन डाउन कर लो कि आपको क्या लगता है क्या पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है। फिर जब आप उनको टेबुलेट कर लोगे तो आप बस वो टेबल को पढ़ो, उसको फिर समझो कि कैसे इसको कंपेयर किया है। क्योंकि आप अगर एक एक एंटिटी डिफरेंशिएटेड पढ़ते रहोगे, AML आप अलग से पढ़ लिया, CML पे आके आप पूरा भूल जाओगे, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ऑलवेज कंपेयर करके पढ़ो एंड दिस विल हेल्प यू इन योर MCQs एज वेल, बिकॉज MCQs में यही 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, राइट। सो फोकस ऑन दिस एंड यू नीड टू गिव एज मैनी एज डेज पॉसिबल। दिस इज समथिंग कि आपको वो जो टेबल्स हैं वो बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी, आपके नोट्स बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये याद नहीं होता है। आप आज भी पढ़ लोगे, आपकी फाइनल एग्जाम के एक दिन पहले कोई आपसे CML में पूछ लेगा गुड प्रोग्नोसिस बैड प्रोग्नोसिस, आपको कुछ याद नहीं आएगा, राइट। सो दिस इज समथिंग, प्लीज गिव मोर टाइम, और इससे ही बच्चे थक जाते हैं, राइट। मतलब इस पे आके लोग गिव अप कर देते हैं कि भाई हो गया, मतलब दिस इज समथिंग वेरी abnormal. But again you need to understand, similar goes with RBC में भी आपको ऑलमोस्ट एंटायरली चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, बट अगेन टेबुलेट, और इसमें भी यू नीड टू नॉट मग अप एवरी फैक्ट जो आपके नोट्स में है, उससे याद तो आपको हो जाएगा, बस कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दो, राइट। सो फोकस मोर ऑन दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स। देन लंग में अगेन जो आपका मे बी प्रॉफ में तो आई गेस एम्फाइसीमा ब्रोंकाइटिस के अलावा ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बट निमोनिया इज अ टॉपिक विच विल हेल्प यू इन फाइनल ईयर, प्लूरल एफ्यूजन विल हेल्प यू इन फाइनल ईयर, ARDS will help you in final year. These all topics are also there in final year, but बहुत ही non-specific छोटे topics हैं, you can maybe do it later, but focus on reading these if possible. Again days allotted should be 4 more or less. तो I have made it in such a manner कि आपकी 3 महीने में रॉबिन्स की फर्स्ट रीडिंग हो जाए, right? मे बी इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, और आई गेस अभी तो ऑलरेडी शुरू हुए को 1-2 महीने हो चुके हैं। तो GIT में अगेन दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपके प्रॉफ में तो IBS IBD पे ही पूछा जाता है, बट आई थिंक यू कुड स्टडी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, दिस विल हेल्प यू इन सर्जरी। आप पोस्टिंग्स में भी जाते तो हर्नियाज में इट विल हेल्प यू अ लॉट, and then gastritis and some other disorders of esophagus, but again this is more or less final year oriented या concept building के लिए, तो the approach would remain concept plus जहाँ पे भी कोई fact आता है उसको वहाँ पे retain करना। You can study GIT in 7 days, right? Then liver and gallbladder. So liver and gallbladder is something very important. liver तो again sort of पूरा ही पढ़ना पड़ता है cirrhosis का, क्योंकि पूरा spectrum होता है, तो आपको उसको पूरा ही पढ़ते चलना है। And again you need to focus more on these particular topics in general, okay? Approach would remain the same, concept plus जहाँ पे fact है उसको retain कर सकें। Days allotted are 10, okay?
देन किडनी में अगेन नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसमें मोस्टली व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज कि स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं नेफ्राइटिक नेफ्रोटिक। अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, तो मैकेनिज्म्स जानो पहले कि कैसे इंजरी हो रही है, उसके बाद इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू ऑल। ओके, सो दिस इज समथिंग विच यू कैन मे बी टेक मोर डेज, बट you need to study it good, right? And then breast is something very important only for surgery, abhi it's not much needed, but if you can understand the types of breast carcinoma in pathology it will be very important, because वो आखिरी तक याद नहीं हो पाता है, काफ़ी confusing लगता है। endocrine system is again very important, diabetes और thyroid ज़्यादा आता है prof में, but it is something which you can study for in general your concept building or in clinicals, right? So this is again approach would remain the same, days allotted are higher on the side because it is a huge chapter, right? So now this was in general the markings. The main purpose of this video is not marking but to help you understand, right? So now what I would do is you will have your first reading in 3 months, right? You finished reading Robbins once, okay, धीरे धीरे एग्जाम का प्रेशर या जो भी आपको कॉलेज का प्रेशर शायद बढ़ने लग जाए, तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू focus more on your notes, and in the second reading you can just revisit. Okay, so now whenever you read Robbins you need to follow a 3-layer strategy, in which first reading would be like आप जब पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो बस आप एक गो थ्रू कर लीजिए कि क्या क्या हेडिंग्स है, फिर उसके बाद उसको आप अच्छे से पढ़िए एक बार कि क्या क्या लिखा है, फिर तीसरी बार आप सिर्फ वो हाईलाइट करिए जो आपके नोट्स में नहीं दिया हुआ है। ओके, एंड जो नोट्स आपके वहाँ से आपने कुछ एड ऑन्स किया उसको आप स्टिकी नोट्स बना के आपके से नोट्स में ऐड कर लो, या इसकी एक अलग कॉपी बना लो रॉबिन्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। फिर जब आप दूसरी बार, जब जैसे 3 महीने 4 महीने हो गए आपको रॉबिन्स पढ़ते पढ़ते, तो अब आप क्या करो, आपके जो कोचिंग के नोट्स हैं, जो भी ऐप आपने ले रखी है उसके आप नोट्स पढ़िए, एंड देन मे बी यू हैव योर रॉबिन्स के एड ऑन पॉइंट्स, तो आप उससे ही बस रिवाइज करो। आपको रॉबिन्स बार बार उठाने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, आप रॉबिन्स को बस फ्लिप करना पेजेस, बट आपकी जो स्टिकी नोट्स है वो आपको मेनली काम आने वाले हैं। सो दिस विल बी योर सेकेंड रीडिंग। फिर जब थर्ड रीडिंग होगी तब आपके एग्जाम्स आने वाली होगी, तब यू कैन पिकअप हर्ष मोहन, और आप एक बार उसमें फिर मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, आपके नोट्स काफ़ी रहते हैं। हर्ष मोहन से बस आप हेडिंग देखना चाहो तो देख लो अपने कॉन्फिडेंस के लिए, बाकी आप रॉबिन्स पढ़ के भी अच्छे से एग्जाम्स दे सकते हो, एंड मेनली आपका एमसीक्यू रिटेनमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो वाई यू नीड टू स्टडी रॉबिन्स इज बेसिकली फॉर योर एमसीक्यूज। वाई फॉर एमसीक्यूज? बिकॉज क्या होता है कि इट्स नॉट जस्ट इंग्लिश, मतलब ऐसा नहीं कि रॉबिन्स की इंग्लिश लोग को टफ लगती है तो उससे आपकी एमसीक्यू रीडिंग अच्छी होगी, दैट इज़ वन पॉइंट, बट मेन पॉइंट इज कॉम्प्रीहेंशन, कि जो बुक्स होती हैं उनकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, जब उनसे क्वेश्चन बनता है तो उसी लैंग्वेज में बनता है। जो क्वेश्चन है वो आपके नोट से ऐसे डायरेक्ट नहीं आ जाएगा कि दिस इज मोस्ट कॉमन कॉज इज दिस, वो घुमा फिर आके पूछते हैं। तो जो एक कॉम्प्रीहेंशन है, एक जो आपका दिमाग खोलने का है, जब आप कोचिंग के नोट्स पढ़ते हो आप एक रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो कि यार बस इतना पढ़ाया है इन्फ्लेमेशन में, इसको रट लो या समझ लो। बट जब आप बुक खोलते हो तो आपके सामने 5 चीज़ें और निकल के आती हैं, जिसके कारण आपका एक ब्रेन में डेवलपमेंट होती है, उसके कारण वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू फोकस मोर अपॉन रेदर देन वरीइंग कि रॉबिन्स पढ़ूँ या नहीं। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ नॉट गेटिंग मच टाइम या नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ फोकस ऑन दीज रेड चैप्टर्स at least. If possible you can do the yellow ones as well. So I hope this video was something very useful for you all. काफ़ी मैंने काफ़ी चीज़ें कंसिडर करी कि मैं जो आपको IMP टॉपिक्स हैं उसको हाईलाइट कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच गाइज। ऑल्सो प्रेप लेटर पे आप वो फीचर चेक कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज फील फ्री टू DM me on medshorts or comment below. Thank you, stay safe, stay healthy and keep learning.